Hello dear children. Next, parallelogram law of vector addition. Dear children, you have studied triangle law of vector addition. Okay, there you saw when two vectors they act as the two sides of a triangle taken in same order, then the third side in opposite order is the resultant. Here parallelogram law, it is just like a triangle law. Laws are different but the derivation is the same, and parallelogram law can be transformed into triangle law and triangle law can be framed into parallelogram law. Okay, let us see what this parallelogram law is. Dear children, if any two vectors acting on a particle, completely represents by magnitude and direction, ध्यान दो इसमें, completely represents by magnitude as well as direction as the two adjacents of a parallelogram. Adjacents means साइड चिपका हुआ, जो दो साइड कनेक्टेड है. ठीक है, इफ एनी टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट विल बी दैट डायगोनल which originates from the common point of these two vectors. Let us draw a parallelogram, we will understand. Dear children, ABCD is a parallelogram. Okay, this law states that two vectors acting on a particle, if represents completely means what? Vector will be complete with magnitude and direction, so these two terms should be attached. If any two vectors acting on a particle completely represents by magnitude as well as direction as the two adjacent sides of parallelogram, adjacent sides, this side or this side or this side, this side or this side, not this and this or not this and this. Adjacent means this and this, these are adjacents. Okay, if any two vectors acting on a particle, let the particle be this one, completely represents by magnitude or direction, let these two vectors this and this, magnitude is AB, direction is this side and this direction is this side. To any two vectors acting on the particle, it represents by magnitude as well as direction as the two adjacent sides. These are two adjacent sides of a parallelogram. Then the resultant will be the diagonal. Which diagonal? Because the parallelogram has two diagonals, BD and AC. Which diagonal? The resultant will be that diagonal which originates from the common point. ये दोनों वेक्टर जहां से निकले हैं उसी से जो डायगोनल ड्रॉ होगा वही होगा उसका रिजल्टेंट. मतलब रिजल्टेंट होगा ये. ठीक, एससी होगा रिजल्टेंट, एससी सी ए नहीं, एससी. यहाँ से सबका टेल यही होगा, ए बी वेक्टर का टेल ए, ए डी वेक्टर का टेल ए, एससी वेक्टर का टेल ए. यहाँ पर एज पर पैरेललोग्राम लॉ एससी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर. इन दोनों का रिजल्टेंट यही है. ये है पैरेललोग्राम लॉ. बीडी वाला नहीं है, ये वाला डायगोनल नहीं, ये डायगोनल, जो डायगोनल कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है. सो फिर से एक बार डेफिनेशन लिखते हैं. दिस लॉ स्टेट्स दैट if two vectors represent
as the two adjacent sides of a parallelogram. Adjacent sides of a parallelogram, okay, by magnitude as well as direction, then the resultant will be the diagonal of the parallelogram originating from the common point. Originating from the common point. This law states that if two vectors represent as the two adjacent sides of a parallelogram by magnitude as well as direction, दोनों by magnitude as well as direction, then the resultant will be the diagonal of the parallelogram originating from the common point. As per this is parallelogram law. देखो गौर करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये पैरेललोग्राम और नहीं है, ये ट्रायंगल ही है। कैसे ना, देखो ये पैरेललोग्राम हुआ, ये हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, और हम जानते हैं वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे बाय मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और पैरेलल शिफ्टिंग होगा तो वेक्टर का डिफरेंस नहीं है, दो वेक्टर सेम है। अगर मैं एडी को इस तरफ शिफ्ट किया, बीसी तो पैरेलल है ही, एडी को शिफ्ट किया, एडी एंड बीसी इक्वल बाय मैग्नीट्यूड दे आर इक्वल एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एडी वेक्टर इज इक्वल टू बीसी वेक्टर। देखो एडी पैरेलल टू बीसी है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं एडी वेक्टर इज इक्वल टू बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर सीबी नहीं, बीसी, क्योंकि एक डी की डायरेक्शन है सो बीसी की डायरेक्शन होगा, ये होगा। तो हम लिख सकते हैं एडी इक्वल टू बीसी। क्यों? बिकॉज दीज टू आर बाय मैग्नीट्यूड इक्वल एंड दे आर पैरेलल, सो AD इज इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं। सिमिलरली AB वी कैन राइट एज ए DC, है कि नहीं? मिल गया, क्योंकि AB के मैग्नीट्यूड CD के मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड दोनों पैरेलल है, तो AB इज इक्वल टू DC। अब देखो अगर AD इज इक्वल टू BC आ गया, AD इज इक्वल टू BC आ गया, तो AD के बदले में BC लिख सकता हूं, तो AD के बदले में BC लिख दूं यहां पर। अब देखो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये ट्रायंगल लॉ है, दिस इज ट्रायंगल लॉ, बाई ट्रायंगल लॉ, ये बाई ट्रायंगल लॉ है। क्यों ना, AB BC सेम ऑर्डर, AC इन अपोजिट ऑर्डर, ये पैरेललोग्राम कुछ नहीं है, ट्रायंगल लॉ ही करेंगे इसका डेरिवेशन, बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह डेरिवेशन करेंगे। नहीं, मैं दिखा देता हूं, जैसे ट्रायंगल हुआ था वैसे इसको प्रोड्यूस कर दो। अब देखो अगर ये दोनों का वेक्टर का एंगल थीटा हुआ, AB एंड AD का बीच का एंगल थीटा हुआ, तो यहाँ पर तो ये AD हो गया BC, AB और BC का एंगल कौन सा होगा? नहीं, ये होगा, बिल्कुल ट्रायंगल होगा, ये होगा थीटा। क्यों? ये तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल ट्रांसवर्सल। ठीक, अब देखो बस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बिल्कुल ट्रायंगल, डिटो ट्रायंगल, डेरिवेशन सेम। इसका अगर ये ABCD इसका नाम E दे दो तो B निकल जाएगा कॉस थीटा, C निकल जाएगा साइन थीटा। डेरिवेशन करेंगे क्या? बिल्कुल डिटो ट्रायंगल लगे था, क्या डेरिवेशन करना है? ये डेरिवेशन करेंगे, बस छोड़ देते हैं, ये ट्रायंगल की तरह है पैरेललोग्राम, बिल्कुल डिटो आ जाएगा। ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन तो कर चुके हैं, बस वैसा आ गया, बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा, ऐसे हम मिल जाएगा क्या?
नहीं एस सी मिलेगा, एस सी इज इक्वल टू मिलेगा बस ये जो हमने जो निकाला था, मानो ये इसको ए वेक्टर या बी वेक्टर लिया था, इसको मानो ए वेक्टर लो, इसको मानो बी वेक्टर लो, तो एस सी इज इक्वल टू आर, ए सी का मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। बिल्कुल ट्रायंगल अप्लाई होगा। और ये दोनों के बीच के अगर एंगल अल्फा हुआ, ये एंगल अल्फा एस सी और ए बी के बीच में, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा ए के साथ एंगल कर रहे तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बस ये होगा रिजल्ट, नहीं होगा मैग्नीट्यूड। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। डेरिवेशन करो, ट्रायंगल की तरह ही डेरिवेशन होगा, और क्या करना फिर रिपीट। ट्रायंगल ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, और दूसरी जहाँ पर ट्रायंगल लॉ डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ एनालिटिकल मेथड वो चेक कर हो गया। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।